न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, DN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल में एक बार फिर पुलिस की एक गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल वाले को मारा धक्का, किसी भी तरह बची जान। मौके पर मौजूद लोगों ने धक्का मारकर भाग रही पुलिस गाड़ी को रोका। रानीगंज पेपर मिल में एक बार फिर दुर्घटना। रात को काम करने के दौरान एक गाड़ी ने एक श्रमिक को कुचला। काम बंद कर श्रमिकों ने किया हंगामा। कुल्टी क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचातान एक बार फिर आई सामने। पार्षद जाकिर हुसैन ने पूर्व पार्षद मीर हासिम पर लगाया तालाब भरने का आरोप। आसनसोल में पुलिस की गाड़ी के चालक बेपरवाह होकर चलाते हैं और बीच बीच में दुर्घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। एक बार जीटी रोड पर उषाग्राम मोड़ तो दूसरी बार ट्रैफिक मोड़ पर बेपरवाह पुलिस गाड़ी ने मोटरसाइकिलों को धक्का मारा है, जिसमें लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इस बार कल्याणपुर के रहने वाले तन्मय राय भाग्यशाली रहे कि वह पुलिस की गाड़ी से धक्का लगने के बाद भी बच गए। शनिवार को यह घटना सनरेले रोड में HLG मोड़ पर घटी है। तन्मय राय अपने घर से सृष्टि नगर जाने के लिए निकले थे। HLG मोड़ पर वह जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, उन्होंने अपनी बाइक को आगे बढ़ा दी, लेकिन एक पुलिस गाड़ी रेड सिग्नल होने के बावजूद तेजी से आ गई और तन्मय राय को धक्का मार दिया। तन्मय राय छिटक कर दूर जा गिरे। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस गाड़ी को भागने से रोक लिया। वहीं कुछ लोग तन्मय राय को पास ही स्थित HLG अस्पताल ले गए। इस हादसे से तन्मय राय बच गए, लेकिन वह सदमे में है। खबर पाकर उनके बेटे भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। पिता पुत्र ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाया। সবুজেই আসছিলাম ওদিক থেকে, কল্যাণপুর থেকে স্মৃতিনগরের দিকে। এদিকে লাইট লাল ছিল, সব লাইট বাকি লাল ছিল। পুলিশ গাড়িটা এসে ফুল স্পিডে মেরে দিল ধরাম করে। নিয়ে বলছে যে আমি হর্ন বাজিয়ে আসছি। আপনি বলুন, পুলিশ যদি এরকম করে কি বলবো? আপনি রেড সিগন্যাল দেখে ক্রস করলেন? আমি আমার লাইট সবুজ, আচ্ছা, সমস্ত লাইট রেড। আচ্ছা, আমি কল্যাণপুর থেকে স্মৃতিনগর যাচ্ছি। আচ্ছা, আমি তো সবুজে যাব না। আচ্ছা, আমি তো জানি ও রেডে থেমে যাবে। আচ্ছা। দেখুন, আমি অফিসে ছিলাম, আমার বাড়ি থেকে খবর এলো যে বাবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ অফিস থেকে দৌড়ে এলাম। এসে জানতে পারছি HLGর এই ক্রসিংয়ে সিগন্যাল রেড হয়ে গেছিলো। তা সত্ত্বেও অপোজিট এন্ড থেকে আমার বাবা ক্রস করছিলেন। সিগন্যাল রেড হয়ে গেছে অপোজিট এন্ডে, তার সিগন্যাল গ্রিন ছিল, তিনি ক্রস করছেন। অপোজিট এন্ড থেকে পুলিশের গাড়ি ফুল পিক আপে এসে তাকে মেরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমি অ্যাজ এ সিটিজেন অফ আসানসোল আমি এইটুকুনি জানতে চাইছি যে তাহলে রুলস রেগুলেশন ট্রাফিক ব্যবস্থা কি? যদি সাধারণ মানুষের সঙ্গেই পুলিশ এই রকম করে, তাহলে আর কি আমাদের কি আস্থা থাকবে পুলিশের প্রতি? এই নিয়ে এখানকার লোকাল বাসিন্দা, তাতেও আজকে আমার বাবা হসপিটালাইজড হয়ে গেলেন, কলার বোন ফ্র্যাকচার, পা ফ্র্যাকচার। जिम्मेदारी क्या नेबे? तन्मय राय और उनका बेटा इधर घटना के बाद जिन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भागने नहीं दिया, उनका कहना है कि कानून का रक्षक ही अगर कानून तोड़ने लगे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों ने आम लोगों से अपील की है कि वे पुलिस के अन्याय के खिलाफ आगे आकर आवाज बुलंद करे। ঘটনা ঘটেছে, নো সিগন্যালে স্পিডে ক্রস করছিল আর কি, গাড়িটা ধাক্কা মেরে দিয়েছি, তারপর পালাচ্ছিল। আমরা দুজনে চেঁচামেচি করলাম, গাড়ি দাঁড় করালাম। তারপরেও পুলিশ কোনো কিন্তু অ্যাকশন নিতে চাইছিল না। আমরা ধাক্কা ধুক্কি করলাম, চেঁচামেচি, তারপরে অ্যাকশন নিচ্ছিল না, কোনো অ্যাকশন নেওয়ার ছিল না। আমাদেরকে বলা হচ্ছে আপনারা বাড়ি যান, এইভাবে কথা বলা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে, পাবলিকের সঙ্গে। যদি পাবলিক থাকতো তাহলে আপনারা অনেক বেশি কেস করে দিতেন, নিয়ে চল গাড়িটা থানাতে কেস করে দাও, ওই করে দাও। কিন্তু বলতে গেলে পুলিশ গাড়ি তাও তো এরকম কোনো কেস হওয়া যাচ্ছে না, নর্মাল বিহেভ করা হচ্ছে। এইটা আমি জানতে চাইছি আজকে আমাদের সবাই পাবলিকের কাছ থেকে, কি আইন কি সবার জন্য আলাদা না সবার জন্য এক? যদি এক, তাহলে আপনারা পাবলিকরা কি করছেন, পুলিশের আইন কোথায় দেখাচ্ছেন? এটা একটা রেড সিগন্যাল পড়েছিল, পুলিশের গায়ে একটা স্পিডে এসছে, নিয়ে এসে একটা বাইকওয়ালাকে মেরেছে, ঠিক আছে? তো আমরা যে ওটাকে তুললাম, তো এই গাড়িটা দাঁড় করালাম, এদের কোনো পেপার নেই, পালাচ্ছিল এরা। আমরা ধরলাম, সবাই ছিল দাদারা, ধরে তারপর ওকে হসপিটালে ভর্তি করলাম পেশেন্টকে। ওর কলার বোনটা আর হাঁটুটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, এখন আপাতত ট্রিটমেন্ট চলছে। স্যাররা এলো, এবারে দেখা হচ্ছে কি হচ্ছে।
रानीगंज पेपर मिल में एक बार फिर एक दुर्घटना में एक श्रमिक की मौत हो गई, जिससे कारखाना में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। बताया गया कि रानीगंज के नुपुर ग्राम के रहने वाले 50 साल के ब्रजेन मंडल रात की पाली में काम कर रहे थे, तभी एक वाहन ने उन्हें कुचल दिया। उस समय कारखाना प्रबंधन द्वारा उन्हें रानीगंज ब्लॉक हेल्थ सेंटर में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर शनिवार की सुबह काफी हंगामा हुआ। मृतक श्रमिक के परिजनों और श्रमिकों ने कारखाने के गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं कुछ श्रमिक ने प्रबंधन के एक अधिकारी को घेर कर जवाब तलब किया कि आखिर क्यों नहीं कारखाना में सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों ने उचित मुआवजा और मृत श्रमिक के एक आश्रित को नौकरी देने की मांग पर काम बंद कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप और प्रबंधन के आश्वासन के बाद फिर से रानीगंज पेपर मिल में काम चालू हो पाया है। गाड़ी चापा पड़े गेছে ওতে শ্রমিক একটা মারা গেছে। তো রাত্রে প্রশাসন এসে আমাদের কিছু লিডার এসে তারপরে ওদেরকে নিয়ে চলে গেছে। তারপর থেকে আমরা সকালে যখন শুনি তখন আমরা একটা আন্দোলনে নেমেছি যে যতক্ষণ না ফয়সালা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কাজ চালাচ্ছি। কি ডিমান্ড আছে আপনাদের? আমাদের ডিমান্ড যেমন ওর পরিবার যেমন পায় এটাই আমাদের ডিমান্ড। সেখানে আমরা সবাইকে জানিয়েছি, সেই নেতাগুলোকে জানিয়েছি, তারাও এসছে। এবার প্রশাসন তার প্রশাসনের কাজ করেছে, নেতারাও নেতাদের কাজ করেছে। আমরা এখন শুনছি পরিবারবর্গ এবং যারা এখানে একসাথে কাজ করে তাদের এবং আমরা গাড়ি পাঠিয়ে তার পরিবারকেও খবরটা দিয়েছি। ওনারা বলছে বডি কেন নিয়ে যাওয়া হলো, এখানে আনা হয়, ওটা তো প্রশাসন বুঝবে, ওটা তো আমাদের শহরের কিছু নয়। কারণ আমাদের ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমাদের পুলিশকে খবর দিতে হবে। কিন্তু আপনাকে তো আপনাদের কর্তৃপক্ষকে পুলিশকে আগে ফার্স্ট ইনফরমেশন দেওয়ার আগে তো আপনি তো বাড়ির লোককে তো ইনফরমেশনটা দিতে পারছেন কেন? বাড়ির লোককে ইনফরমেশন পাঠানো হচ্ছে, পুলিশকে পাঠানো হচ্ছে, দুজনকেই আমরা একসঙ্গে পাঠাচ্ছি। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा,
और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पूरे राज्य के हर जिले और हर ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में आपसी खींचातान और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। अब ऐसा ही एक मामला नियामतपुर अंचल में देखने को मिला है, जहां पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसके केंद्र में है एक तालाब जिसका नाम है सिरंगी तालाब। शनिवार को 59 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद जाकिर हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि मीर हासिम द्वारा सिरंगी तालाब को धीरे धीरे भराई कर उसकी जमीन को बेचा जा रहा है और वहाँ मकान बनाए जा रहे हैं। ये सिरंगी तालाब का जो लड़ाई है, यह हम 2016 से लड़ रहे हैं। ये 2016 से हम जब तालाब का भराटी हो रहा था, उस टाइम एक्स काउंसलर मीर हासिम था। उसी टाइम से हम लोग जो है मार्च पिटिशन करके दीदी को भी दिए, मेयर साहब को दिए, एडीएम को दिए, एसडीओ को दिए। जो ये पेपर आपके सामने है, तो ये टोटल ज़मीन मीर हासिम का नाम में रिकॉर्ड है। इसको कुछ दिन तक तो मैंने काम रुका हुआ था, कम बेसी काम ये लोग चला ही रहता लुक छुप करके। अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले कोई जो है उस तालाब में निर्माण कर रहा था। हम 2 दिन यहाँ नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो हमको कोई प्रेस वाला फ़ोन किया, ऐसा तो बात है। हम लोग नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी काम वहाँ बंद है। ऑलरेडी हम लोग उसको मेयर साहब को भी हम लोग दे चुके हैं पुराना रिकॉर्ड। तो रह गया कि ऐसा निर्माण ने जो भी निर्माण काम हुआ है उसका टाइम में ही हुआ है और मेरा टाइम में ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, रह गया जब से उसको ये पद मिला है जनरल सेक्रेटरी का, तब से थोड़ा सा इलाका में दादागिरी बढ़ा दिया है। मैंने तालाब जो है उसको आप भराटी करके अब ज़मीन जैसा शक्ल दे दिया है। अब तो हम लोग मेयर साहब से यही अनुरोध करें कि जैसा था उस तरह से पूरा इसको छानबीन करें और छानबीन करके जो भी एक्शन लेना चाहे ले। लेकिन इधर मीर हासिम ने जाकिर हुसैन के आरोप को इनकार करते हुए कहा कि तालाब भराई का आरोप बेबुनियाद है और उन्होंने कभी इसकी जमीन को बेचने का प्रयास नहीं किया है। काउंसिलर की बोलছে না বলছে সেটা আমার দেখা দরকার নেই, কারণ উনি সব সময় বিরোধিতা করেছেন। উনি কংগ্রেসে ছিলেন, জেতার পর টিএমসিতে এসেছেন, আর ও সব সময় আমাকে টার্গেট করে আগেও করেছিল, এখনও করেছিল। পুকুর আমি একটা অংশদার, পুকুরে অনেক মানে মালিকানা আছে, তার মধ্যে আমিও একটা আছি। শতক কিছু কাউরি 20 শতক, কাউরি 18 শতক, কাউরি 25 শতক, এরকম করে সবারই আছে। আমি একটা শেয়ার হোল্ডার। আমি যখন এমআইসি ছিল তখন আমি মানে কি মেয়র সাহেবকে বলেছিলাম কি পুকুরটা আছে ওইটা অনেক ভাগিদার আছে, ওই পুকুরটা যদি মানে সংস্কার করা যায় ওইটা তাহলে করেন, তাহলে খুবই ভালো হবে। তখন কিছু ফান্ডের ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে সেটা হলো না, ফান্ডের অসুবিধা ছিল। এখনও আমি বলছি পুকুর আছে, পুকুর থাক, পুকুরই খুবই দরকার। দিদি সব সময় বলেছেন জল ভরো জল ধরো। আমি এখনও বলছি, আজকে আমি চিঠি দিতে রাজি আছি, এগ্রি আছি, কাউন্সিলর যিনি আছে উনি করিয়ে দেন, পুকুর হলে তো ভালো। তো तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व पार्षदों की आपसी खींचातान पर बीजेपी के टिंकू वर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। আপনি যেটা সারা রাজ্যে দেখছেন টিএমসি নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সেটা প্রমাণ হলো উল্টি বিধানসভাতেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে। প্রাক্তন কাউন্সিলর আর বর্তমানে যারা কাউন্সিলর আছে তারা জমিন জায়গা নিয়ে লড়ছে, পুকুর নিয়ে লড়ছে, লক্ষ্মীপুর নিয়ে লড়ছে। যে নিজেদের মধ্যে যে লড়াইটা এদের চলছে, এই লড়াইতে বোঝা যাচ্ছে কি ভাগের হিস্সাটা যদি না পাওয়া গেলে তারা টিএমসির সাথেই ঝগড়া করছে। আপনি দেখুন আজকে গোটা মিডিয়াতে দেখুন, শুধু আপনি দেখবেন টিএমসিরই কন্দল নিজেদের মধ্যে হচ্ছে।
दुर्गापुर में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर पर्यावरण जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। यह रैली कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने निकाली, जिसमें 2 स्कूलों के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। रैली दुर्गापुर सिटी सेंटर से आरंभ होकर विधान नगर एडीडीए मार्केट तक गई। रैली में खासकर पॉलीथीन की रोकथाम पर अपील की गई थी। আমরা মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি যে পরিবেশকে যদি সুস্থ সতেজ রাখতে হয় তাহলে পরিবেশ দূষণ কমাতে হবে। এই ভাবনাটাকে মানুষের মধ্যে জাগ্রত করা উচিত। আর এই বছরের আহ্বান উইথ দ্য প্লাস্টিক পলিউশন। প্লাস্টিক বর্জন করাটা শুধু নয়, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে আমাদের দেশে, কিন্তু মানুষ সচেতন নয়। সেই জন্যে আজকে আমরা সাইকেল যাত্রা করে জেমুয়া থেকে ডিডিএ মার্কেট, গোপালপুর থেকে ডিডিএ মার্কেট দুটো মহতি সাইকেল র্যালি হলো। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने शनिवार को रघुनाथ बाटी में ADDA के तरफ से बनाए गए एक तालाब का उद्घाटन किया है। मंत्री ने नारियल फोड़कर और फलक उठाकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही चंद्रचूड़ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल मशीन बैठाई गई है, इसका भी मंत्री ने उद्घाटन किया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।